Hello everyone, welcome back in the series of Python. Okay, I am Ashish Goel and we are going to discuss about the recursion in Python today. Right now, let's start with the topic recursion. What is recursion basically? So far we have discussed about the functions in Python, how we can deal with the function we have discussed about, like how to declare, how to call, type of arguments, variable length of arguments, how to deal with the return value or return values, right? So these are the things about function in Python we have discussed so far. But what today we are going to discuss is recursion. Okay. In the previous session, we discussed how to call a function from top level statement or from other functions. But now here we are going to discuss about a function called from within itself, right? A function called from within itself. एक function जो कि अपने आप में कॉल हो रहा है, अपने आप से ही कॉल हो रहा है, एक फंक्शन के अंदर से हमने उसी फंक्शन को कॉल किया हुआ है, हम उसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं रिकर्जन और रिकर्सिव फंक्शन. दैट इज अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन व्हिच कॉल्स इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल से अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, व्हाटएवर द नेम, ठीक है, तो इन द फंक्शन डेफिनेशन we do whatever we want and we also call the function इन द फंक्शन. तो हमने जो फंक्शन जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं उसी फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया हुआ है. दिस इज कॉल्ड रिकर्जन. Self invocation of a function may at first sound like useless or illegal, but it is totally or completely legal and useful too. This is in fact a very important concept known as recursion. Recursion refers to a programming technique in which a function calls itself either directly or indirectly. Let's check this out. In many of programs done in the previous sessions, we must have discussed and illustrated a function that calls or invokes other function. For example, like we have a function say hello and here we are printing like hello. ठीक है, तो हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है से हेलो जो कि हेलो को प्रिंट कर रहा है. एंड फिर हमने यहाँ पे ग्रीटिंग एक मेथड बनाया जो कि से हेलो को कॉल कर रहा है. अब आप देखिए यहाँ पर ग्रीटिंग इज द फंक्शन हु इज कॉलिंग से हेलो. ठीक, तो से हेलो ग्रीटिंग में से कॉल हो रहा है, तो ग्रीटिंग फंक्शन दूसरे फंक्शन उनकी से हेलो को कॉल कर रहा है. तो ग्रीटिंग फंक्शन इज कॉल्ड a calling function and the say hello is a called function here, right? तो इस तरीके से एक फंक्शन में से हमने दूसरे फंक्शन को कॉल किया और ये बहुत सारी बार हम करते हैं, बहुत सारी बार हमें ज़रूरत पड़ती है. इवन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो से हेलो में हम कॉल कर रहे हैं प्रिंट को, तो प्रिंट इज ऑल्सो अ फंक्शन. दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इट इज अ बिल्ट इन फंक्शन बट इट्स अ फंक्शन. तो फंक्शन है यहाँ पर प्रिंट और प्रिंट को हम कॉल कर रहे हैं से हेलो से, तो से हेलो भी एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है. तो ये बहुत बार हम देखेंगे और यूज करेंगे कि हम किसी फंक्शन में से किसी और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं या इन्वोक कर रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग in the programming world as well as in Python programming. But if we write a function definition that calls itself, then this function would be known as recursive function. For example, say hello if calls itself say hello, right? तो say hello कॉल कर रहा है say hello को, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम इसे कहेंगे recursive function. Here the recursion done because यहाँ पर आपने जो say hello है वो say hello में से ही कॉल किया हुआ है. This is an example of direct recursion, जहाँ पर आप डायरेक्टली किसी फंक्शन में से उसी फंक्शन को कॉल कर रहे होते हो. This is direct recursion. Recursion can be indirect also. So how indirect? In case of indirect, a function calls another function which calls the which calls its caller. Okay, a function calls a function which calls its caller function is known as
indirect recursion. Okay, for example, say we have a function say hello, and it calls greeting, and greeting calls the say hello, right? तो say hello ने greeting कॉल किया एंड greeting ने वापस से say hello कॉल किया, तो होगा क्या कि हम say hello से शुरू होंगे, greeting पे जाएंगे और फिर वापस say hello पे आ जाएंगे। ओके, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर जो say hello है वो फिर से कॉल हो जाएगा, राइट? तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिकर्जन बेसिकली। As discussed, we can say that the recursion can be of following two types: direct recursion, where a function calls itself directly from its function body, and second one is indirect recursion, in which a function calls another function which calls its caller function. Alright, जैसे कि हमने लास्ट अभी देखा है। Recursion is a technique for solving a large computational problem by repeatedly applying the same procedure or procedures to reduce it to successively small problems. Right? Recursive procedure has two parts: one or more base cases, and a recursive step. So these are two important parts: one or more base cases and the recursive step. For example, yes. Okay, so here is the example. Say we have a function, say hello, in which we are printing hello, and we are calling the say hello again. ठीक है, इधर हमने यहाँ पे क्या किया है, स्टार्टिंग मेन से हेलो को कॉल कराया है और फिर मेन एंड। ठीक है, ये हमारे टॉप लेवल स्टेटमेंट यानी कि मेन फंक्शन ऑफ पाइथन, राइट? इस तरीके से काम होना है बेसिकली। यहाँ पर सेव किया, इसको रन कराया, देखिए यहाँ पर ये से हेलो को ही कॉल कर रहा है, तो ये हेलो 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 इस तरीके से ये आता चला जा रहा है, राइट? तो यहाँ पर से रोकते हैं, कंट्रोल ओके। तो देयर इज द प्रॉब्लम विद दिस कि ये एंडलेस लूप में चला गया एक तरीके से, तो जो कि हेलो 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 प्रिंट करता जा रहा है, और जिसकी बेसिक टाइम ऐसा आया कि सिस्टम stops execution and says कि yes there is a problem with this particular function call, क्योंकि ये रिकर्सिवली कॉल हो रहा है और इसका कोई एंड नहीं है। तो वी मस्ट हैव अ बेस केस एज वी डिस्कस। तो बेस केस यहाँ पे होना चाहिए। तो सपोज हमने यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा समझते हैं पहले चीज को, फिर वापस आएंगे यहाँ पर करेक्ट कर। Okay, write and sensible recursion code. So this code has a recursion code but not sensible। जो अभी हमने डिस्कस किया वो एक नॉन सेंसिबल कोड है, ठीक है। दिस कोड नॉट डिफाइंड क्लियरली वेयर टू स्टॉप, ठीक है। अभी यहाँ कहीं पर भी हमने ये नहीं बताया कि रुकना कहाँ है, और इसलिए क्या हो रहा है, वो लूप चलता जा रहा है, एक इनफाइनाइट लूप में एक तरीके से हम जा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। Right or sensible code is the one that fulfills the following requirements. What? It must have a case whose result is known or computed without any recursion calling, known as base case। तो यहाँ पर एक base case होना चाहिए जो कि एक तरीके से जिसका कि एग्जीक्यूशन बिना रिकर्जन कॉलिंग के हो, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर चाहिए, तो ये हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा। इट ऑल्सो हैव द रिकर्सिव केस which is more general case of the problem we are trying to solve using the recursive call to the sum function, right? तो बेसिकली यहाँ पर दो केस होने चाहिए, एक बेस केस और एक रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस में आपको बार बार फंक्शन को कॉल कराना है, तो कब तक आपको कॉल कराना है, कब कॉल कराना है, तो ये आपका रिकर्सिव केस हो गया। और जो आपका बेस केस है दैट इज द केस वेयर you can say your recursion get stop, ठीक है। तो the stopping point you can say the base case, और the recursive cases जहां पर आप फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कराएंगे।
it out. In our example, how we can do so. Suppose we passed an n here, say n is 5, and then what will happen? Suppose if n is greater than 1, then we want to print hello and we want to call this say hello. Zero. Check this out. Oh. n माइनस वन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं जिससे कि हर बार एक नई वैल्यू हमें यहाँ मिल जाए। तो हमें यहाँ पर वापस से इसको रन कराना है, run it. Okay, see, now you can check it out. We have hello 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 for 5 times and properly यहाँ पे starting हुआ मेन, उसके बाद फिर hello ये कॉल हुआ फर्स्ट टाइम, यहाँ पे hello पहुंचा ये 5 के साथ में, फिर उसके बाद यहाँ चेक हुआ whether n is greater than 0, yes it is, then hello print हुआ और फिर उसके बाद ये आ गया। और else में बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ये कंडीशन false होती है तो ये रिटर्न हो रहा है which is omitted, राइट। तो अगर आप ये नहीं लिख रहे हैं स्टेटमेंट तो भी ये काम करेगा, क्योंकि अगर एक नहीं चला है तो एल्स में हमारे पास कुछ है नहीं, और जब कुछ है नहीं तो इसका मतलब सिस्टम कंप्लीट हो गया, आपका जो फंक्शन है और वो फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू आप रिटर्न नहीं कर रहे तो आप इस स्टेटमेंट को यहाँ पर ओमिट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ओके, तो जो लास्ट था वो फंक्शन कुछ इस तरीके से ही काम कर रहा है, ये ऑटोमेटिक एल्स और रिटर्न यहाँ पे काम कर रहे हैं इम्प्लिसिटली। अभी आप अगर इसको भी चेंज करके यहाँ रन कराते हैं तो इट विल बी सेम, राइट, कोई डिफरेंस नहीं आना है। सेम, वी हैव 5 टाइम्स हेलो हियर, ऑलराइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक बेस केस लगा दिया कि हमें कब रिटर्न करना है। तो बेसिकली रिटर्न कब हुआ है, जब हमारी वैल्यू 0 पर पहुंच गई है, आप ऐसा कह सकते हैं। इट्स नॉट 0 रिटर्न। आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पर इफ n इज इक्वल्स टू 0, तो अगर n 0 है तो रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज लूप ऊपर चल ही रहा है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं नॉट इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली ये हो गया आपका रिकर्सिव केस और ये हो गया आपका बेस केस। फाइन, रिकर्सिव केस एंड द बेस केस। ठीक है, लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बेस केस या रिकर्सिव केस आप वहाँ पे अलग से मेंशन करें, बट यस ये है आपका रिकर्सिव केस और बेस केस, तो आप किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इवन वी कैन रिमूव दीज स्टेटमेंट, इनकी भी जरूरत एज सच नहीं। ऑलराइट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Okay, in this example what we want कि एक नंबर एंटर किया जाए और हम उस नंबर के फैक्टोरियल को प्रिंट करें। तो फैक्टोरियल क्या होता है किसी भी नंबर का, तो लाइक किसी भी नंबर का फैक्टोरियल होगा, से अगर नंबर है 5 तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 1 to 5 सारे नंबर्स का प्रोडक्ट कर दीजिए, यू विल गेट द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें ये करना है, इसके लिए हमने एक डेफ फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से फैक्ट, जैसे कि हम यहाँ पे यूज कर ही रहे हैं फैक्ट। तो एक नंबर हमने रीड करा लिया है और उस नंबर को हम फैक्ट में पास करके उससे फैक्टोरियल ऑब्टेन करना चाहते हैं, जिसको कि हम यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये फंक्शन फैक्ट को बना दें। ठीक है, इसमें एक एन हमने पास कर दिया, ठीक है, वेरिएबल, और यहाँ पर हम इसके अंदर पहुंच के क्या काम कर रहे हैं, इसके अंदर पहुंच के हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इफ n is 1, ठीक है, देन रिटर्न 1, ओके, और एल्स
रिटर्न n मल्टीप्लाई फैक्ट n माइनस वन। ये क्या करेगा, हर बार ही यहाँ पे n माइनस वन करके वैल्यू को भेजता जाएगा और ये इस तरीके से ये कॉल करेगा। तो देखिए समझते हैं यहाँ पर हम। तो सबसे पहले हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ बेसिकली, तो इसमें क्या करना है, right, once the function call like fact कॉल हुआ विद द वैल्यू से 5 अगर हमने यहाँ पे पास किया है तो 5 के साथ ये फंक्शन कॉल हुआ। अभी ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे चेक हुआ कि क्या ये कंडीशन ट्रू है एंड डबल इक्वल्स टू 1, नो दिस इज फॉल्स। क्योंकि ये फॉल्स है तो हम इसको स्किप कर देंगे इसके स्टेटमेंट्स को और हम पहुंचेंगे यहाँ पर जिसमें रिटर्न एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, फैक्ट एंड एन माइनस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो 4 के साथ हम इसे कॉल कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस। ओके, तो एट द वेरी फर्स्ट टाइम व्हाट विल हैपनिंग इज लाइक हमने यहाँ से जो वैल्यू, ये सबसे पहले ये फैक्ट यहाँ पे कॉल हुआ, ठीक है, विद द वैल्यू क्योंकि यहाँ पर है 5, राइट। 5 के साथ ये फैक्ट कॉल हुआ, इसने ये सारा प्रोसेस करना है। देखिए फिर से ये फैक्ट यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो फिर से जब फैक्ट कॉल हो रहा है तो फिर से ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। देखिएगा तो फिर से जो प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा, तो अभी हमारे पास यहाँ पे पहुंचेगा 4 और ये हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है, -1। 3 के साथ हम वापस पहुंचेंगे, एक फिर से एक बार फंक्शन कॉल होगा, ये वैल्यू लाइक 3 के साथ फिर से कॉल हुआ ये, और फिर से यहाँ पे चीज हो गई, राइट, तरीके से। एंड देन अगेन फंक्शन गेट कॉल्ड, भी यहाँ पे कॉल हुआ फैक्ट 2 के साथ, ठीक है। अभी तक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, सिर्फ कॉल होता जा रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो 2 के साथ फंक्शन कॉल हुआ है, अभी कंडीशन फिर से फॉल्स है। फिर हम यहाँ पहुंचेंगे, जब कैलकुलेशन हुआ तो फिर से फैक्ट मेथड कॉल हो गया, मेथड कॉल हुआ, अभी हमारा 1 के साथ कॉल हुआ। अब क्या होगा, एक बार फिर से यहाँ पर इसकी कॉलिंग हो जाएगी, एक बार फिर से कॉल हो गया, इस बार हमारे पास 1 से यहाँ पे कॉल हुआ है और ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ से सीधा अभी रिटर्न हो जाएगा आपका वैल्यू 1, ठीक है। रिटर्न वैल्यू होना शुरू हो गई, तो रिटर्न हो गई वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 रिटर्न हुई। दैट मीन्स व्हाट, कि आपके पास अब यहाँ पे जो वैल्यू है तो 1 पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो रिटर्न वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई, उस राइट। अभी 1 मल्टीप्लाई n होगा तो n की वैल्यू कितनी है 2,
ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई एन हो गया 2, तो यहाँ पे रिजल्ट जनरेट हुआ 2 जो कि रिटर्न होगा। तो 2 के साथ हम वापस यहाँ पे पहुंचेंगे, तो 2 के साथ हम वापस पहुंचे, 2 यहाँ पर आ गया, राइट, यानी कि यहाँ पर हमें मिल जाएगी वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी हमारे पास था एन में 3, तो 3 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर आ गया 6। बेसिकली इस 6 के साथ हम फिर वापस पहुंचेंगे, तो ये 6 के साथ हम वापस पहुंच गए यहाँ पर, तो वैल्यू 6, यहाँ पे हमारी वैल्यू 6। ठीक है, यहाँ हमें मिल रहा है 4 ऑलरेडी, तो 4 से जो वैल्यू हमें जनरेट होकर मिल रही है वो क्या मिल रही है, 24, राइट। 24 के साथ हम रिटर्न हुए, से 24 के साथ आप रिटर्न होकर पहुंचे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आपको वैल्यू मिल जाएगी 24। ठीक है, ऑलरेडी आपके पास क्या है, यहाँ पर है 5 आपके पास ऑलरेडी, जो वैल्यू जनरेट हुई वो हो गई आपकी 120। आप इस 120 के साथ पहुंच गए जहां पर आपने फाइनली फंक्शन जहां से कॉल किया था। ठीक है, ये 120 पहुंच गया आपका इस ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 120 बेसिकली, राइट। ओके, वो 120 फाइनली यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा 120। You can check this out. Oh, executes, run। ठीक है, देखते हैं आउटपुट यहाँ पर, तो हमने दिया 5, आउटपुट आ गया 120। तो दिस इज हाउ दिस रिकर्जन वर्क्स। तो हर बार ये रिकर्जन क्या कर रहा है, अपने अंदर से, मतलब फंक्शन के अंदर से वो फंक्शन कॉल कर रहा है विद सम न्यू वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, और वो इस तरीके से पूरा रिकर्जन हमारा काम कर रहा है। तो एक तरीके से इट रिप्लेसेस द लूप, बट लूप से बेटर यहाँ पे है, क्योंकि लूप की कंडीशन हमें सीधा सीधा देना पड़ रहा होती है, और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमने यहाँ पर ये काम किया है, प्रोसेस भी डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक स्टैक मेंटेन कर रहा है कि आप इसमें एंटर हुए, जैसे आप यहाँ पे जब एंटर हुए तो ये आप यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंच के फिर आगे बढ़े, तो ये एंड अभी ये पेंडिंग है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो रिटर्न वाला स्टेटमेंट है पेंडिंग है। फैक्ट कॉल हो गया, फैक्ट के साथ हम फिर यहाँ पहुंचे, फिर फैक्ट के अंदर पहुंचे, फिर यहाँ तो हर बार फैक्ट कॉल होता जा रहा है, और जो स्टेटमेंट है वो पेंडिंग है, तो वो एक स्टैक में लगा हुआ है बेसिकली। तो एक एक करके वो जैसे 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 हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो फिर वापस से पीछे उधर जिधर से कॉल होता आ रहा है उधर वापस एग्जीक्यूशन होगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, let's check one more example as well. Okay, so here we have one more example. This example is to convert your decimal number to binary. तो हमने नाम दिया है dac to bin। ठीक है, डेक्टोबिन, यहाँ पर ये n हम पास कर रहे हैं, और उसका लॉजिक ये है कि जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है, हम उसको n को डिवाइड करते जाएंगे 2 से और वापस से कॉल कराएंगे, राइट। तो जब तक हमें यहाँ 1 नहीं मिल जाता लास्ट, तब तक हम इसको डिवाइड 2 करके कॉल कराते रहेंगे। ठीक है, एंड जब 1 मिल जाएगा तो हम प्रिंट करना शुरू करेंगे। यहाँ से हमने 1 प्रिंट किया, उसके बाद हम वापस आएंगे तो हम n मोड 2 को प्रिंट कराएंगे, राइट, इस तरीके से। तो नम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने रीड कर ली वैल्यू, और उसके बाद हमने मैसेज दिखाया बाइनरी ऑफ अ गिवन नंबर, एंड देन वी कॉल दिस डेक्टोबिन मेथड। चेक इट आउट हाउ इट वर्क्स। रन किया, ठीक है, तो नंबर आप एंटर करा दो, जिससे 10 एंटर कराया तो बाइनरी इज 1010 20, बाइनरी इज, दोबारा से रन करना पड़ेगा 20।
binary of the 20 is 10100, right? Like this, we can work with this. Okay. Okay. Thank you very much. In the next session, we will do some more